हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टुडेस बायोलॉजी क्लास। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 10, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. So in this chapter basically we'll be discussing about the different kinds of microorganisms. See, we're not talking about genetically modified organisms, we are talking about the simple living beings here. We are talking about microorganisms, the microbes which are used for human welfare. So there are different ways by which humankind has been exploiting these microorganisms for its benefit for thousands of years now. So we will discuss about them and the modern technologies which have now been introduced to use these microbes for human welfare. So let us begin, students. Chapter 10, microbes in human welfare. Now, the first point is microbes are present everywhere, that is in soil, water, air, inside the body of the plants, inside the body of the animals, inside thermal vents, inside deep of soil, under the layer of snow, several meters thick and highly acidic environment. सो सिंपली अगर बोला जाए तो आप देखोगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दुनिया में हर कहीं मिल जाएंगे आपको. यू विल फाइंड देम एवरीवेयर, इन द सॉइल, इन द वाटर, इन द एयर. इनफैक्ट वो पैरासाइट्स की तरह भी रहते हैं इन द बॉडी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, मे इट बी प्लांट, मे इट बी एनिमल और एनी अदर ऑर्गेनिज्म. थर्मल वेंट्स में भी रहते हैं. थर्मल वेंट्स आर दोज प्लेसेस ऑन प्लानट अर्थ जहाँ से आपका जो मोल्टन रॉक होता है, जिसको आप लोग माग्मा बोलते हो, बिलो द सरफेस, वहाँ से जो गैसेस निकलते हैं उसको थर्मल वेंट्स बोला जाता है. तो देर आर सम प्लेसेस क्वाइट सिमिलर, यू कैन से समवॉट लाइक द वॉल्केनिक इरप्शंस, and deep soil as well, and under the layer of snow several meters thick and highly acidic environment, जैसे आपका hot water springs होता है. तो ऐसे conditions में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं. दे आर वेरी मच एडेप्टिव, दीज आर वेरी प्रिमिटिव क्रीचर्स एंड दे आर वेरी मच एडेप्टिव इन नेचर. ओके, I also see कि microbes have a very diverse shape, size and form. उनका बहुत diversity होता है. Such as they are protozoans, they are bacteria, they are fungi, they are microscopic plant viruses, viroids, prions, and many more such proteinaceous infectious agents. ठीक है. तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ड यूज करते हैं या फिर माइक्रोब वर्ड यूज करते हैं, उसमें बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आते हैं. सी, दिस इज नॉट ए फाइलम. माइक्रोब्स कोई फाइलम है, कोई किंगडम नहीं है. ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं. सीधे 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 बोला जाए, माइक्रोब्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. तो वो प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, लाइक एमीबा, like paramecium, like euglena, or they can be different bacteria like streptococcus, lactobacillus, salmonella, or they can be fungi. Different kinds of fungus are there, जैसे yeast, very commonly used, and microscopic plant viruses, viroids and prions. Now see, virus, viroids, prions यहाँ पे हमने उसको microbes के अंदर डाला हुआ है. But as I have already told you students, they are not completely living, though it has been mentioned in the statement, but they are not completely living. They are considered to be a part of the microbe world, though not completely living, but still viruses are part of the microbe world. Now the microbes cause a large number of diseases in human beings, animals and plants, but all the microbes are not harmful. Several microbes are useful to the man in diverse ways. So ये वो पॉइंट है जिसके चलते हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं. सी, देर आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वी नो, और जब भी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं तो हमें कोई डिजीज या फिर किसी टाइप का कंडीशन या फिर किसी टाइप का सिम्टम्स दिखने लगता है, बट इट इज नॉट ट्रू. The microorganisms present around us, they are not only harmful but some of them are very much useful to human beings. और ये जो चीज़ है कि इनका जो यूजफुलनेस है वो हम लोग बहुत पहले समझ गए थे. Microbes have been used in different kinds of food productions in different cultures from thousands and thousands of years. हाँ, ये बात सही है कि हम हमारे पास उस टाइम पे माइक्रोस्कोप नहीं था. वी आर नॉट हैविंग माइक्रोस्कोप, so we could not see them, but we know कि there were some kind of organisms which can be useful. So keeping that into mind, practices have developed through centuries by use of microorganisms for different products for the human beings. Now, these are some of the microorganisms. As you can see, some are bacteria, some are algae, some are fungi, and these organisms, they are some way or the other helpful to human beings. तो एक एक करके डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. विल गो इनटू दैट वन बाय वन. और सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. एंड जब हाउस होल्ड प्रोडक्ट बोलते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है फूड. एंड द फूड दैट वी ईट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय यूज ऑफ सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Now, the first example is the production of curd.
तो कर्ड जो है दही वो दूध से बनाया जाता है, आप सब लोग जानते हो उसे, यू नो दैट। बट मोस्ट ऑफ अस वी थिंक कि उसमें हम लोग एसिड या फिर विनेगर डालते हैं तो मिल्क से कर्ड बनता है। बट देयर इज ऑल्सो ए नेचुरल प्रोसेस दैट इज बाय द यूज ऑफ लैक्टोबैसिलस। ओके, so milk is converted into curd by the microorganism such as lactobacillus or other commonly lactic acid bacteria which grow in milk and convert it into curd. तो लैक्टोबैसिलस नाम से ही पता चल रहा है, लैक्टो मीन्स मिल्क, बैसिलस मीन्स इट इज अ रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया मिल्क में रहता है, इट थ्राइव्स इन द मिल्क, इट ब्रेक्स डाउन मिल्क इनटू कर्ड, एंड दैट इज द रीजन कि वी यूज दिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। सो दिस इज हाउ लैक्टोबैसिलस लुक्स लाइक। बैसिलस है रॉड शेप बैक्टीरिया एज यू कैन सी इन द पिक्चर, and during the growth, actually what happens during the growth of the bacteria, the lactic acid bacteria produce acids that coagulate and partially digest the milk proteins. So जो एसिड प्रोड्यूस होते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से, तो वो एसिड क्या करता है कि मिल्क को कोआगुलेट करता है, उसको थक्का जमा देता है। यूल फाइंड कि उसका लिक्विड पार्ट अलग हो जाएगा, उसका सॉलिड पार्ट अलग हो जाएगा, एंड ये जो सॉलिड पार्ट होता है वो धीरे धीरे करके पार्शियली डाइजेस्ट भी होता है। मिल्क प्रोटीन्स आर पार्शियली डाइजेस्टेड बाय दिस एसिड्स। So that is the reason it is easy to digest curd than to digest milk, because milk proteins जो होते हैं सारे proteins सारे प्रोटीन्स जो होते हैं मिल्क प्रोटीन्स इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होते हैं, एंड यूल फाइंड कि जो प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ द एसिड्स, दे आर इजीली डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बींग्स। तो इसीलिए कर्ड इज इजीली डाइजेस्टेबल एज कंपेयर टू मिल्क। ठीक है, सो दिस इज कर्ड जो आप लोग यूज करते हो, वेरी कॉमन एट हाउस होल्ड फूड्स, एज हाउस होल्ड फूड्स, and you'll find a small amount of curd added to the fresh milk as inoculum or starter, which at suitable temperatures multiply, thus converting milk to curd, which also improves its nutritional quality by increasing vitamin B12. तो जब ये कर्ड में कन्वर्ट होता है तो उसमें एक और एडिशनल प्रॉपर्टी आता है कि इट फॉर्म्स विटामिन B12। द ग्रोथ ऑफ लैक्टोबैसिलस इन द कर्ड गिव्स राइज टू विटामिन B12, प्रोड्यूसेस विटामिन B12, और उसमें एक न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी ऐड हो जाता है। एंड जैसे हम लोग कर्ड बनाते हैं घर पे कि आप अगर पहले का थोड़ा कर्ड है, आप उसको लाओ, उसके दूध में डाल दो, keep it aside for some time, and you'll find that the milk will be converted into curd, because the previously prepared curd already has the culture of the lactobacillus bacteria. So this is how we prepare curd from milk, and this is the first food product where we are using microorganism. The next food product that you will see, एक और पॉइंट स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा मैं, आई हैव जस्ट गिव दैट वन। In our stomach, lactobacillus or lactic acid bacteria play a very beneficial role in checking disease causing microbes. तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं हमारे स्टोमक में, इंटेस्टाइन्स में, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, वो बाकी दूसरे पैथोजेनिक बैक्टीरिया को ग्रो करने नहीं देते हैं। They do not allow the pathogenic bacteria to grow inside our gut, and that is the reason it can protect us from different disease causing microbes. अलग अलग disease causing microbes से वो हमें protection provide करता है। Now second process is fermentation. Household food में जो हम लोग यूज करते हैं fermentation process होता है, और fermentation बहुत अलग अलग वे में हम लोग यूज करते हैं। This is an anaerobic respiration process which we have discussed in class 11th. So the dough which is used for making foods like bread, cake, idli, dosa, etc. are fermented by bacteria that pops off due to the production of CO2. So ये साउथ इंडियन फूड आइटम्स जो होते हैं, इडली डोसा, तो उसको भी देखो आप, ओवरनाइट छोड़ दिया जाता है, उसका बैटर बना के ओवरनाइट छोड़ दिया जाता है, सो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन इट एंड कैन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, जो उसको थोड़ा फ्लफी बना लेता है। सेम विद द ब्रेड एंड केक, तो ब्रेड एंड केक भी आप देखोगे अंदर से बहुत फ्लफी होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द microbes which carry out fermentation and produce carbon dioxide. Now ये जो gaps होते हैं ब्रेड में, आप जो छोटे छोटे होल्स देखते हो, that are formed only because of the production of carbon dioxide. Now the dough which is used for making bread is fermented using the baker's yeast, that is Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae, it is the common baker's yeast, और ये बहुत सारे जगह पे यूज होता है, नॉट ओनली फॉर बेकिंग, बट इसको अल्कोहलिक बेवरेज बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो Saccharomyces cerevisiae is a very useful organism for human beings as food is concerned. तो बेकर्स ईस्ट इसे बोलते हैं बिकॉज जो ब्रेड और केक, जो भी बेकिंग आइटम होता है, उसका डो बनाने के लिए
ये ईस्ट ही यूज किया जाता है। देयर आर नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स एज वेल, एज आई वाज टेलिंग यू कि कुछ ड्रिंक्स भी हैं, कुछ अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी हैं, which are also made by fermentation by the microbes. Example, toddy. Toddy is generally seen in South India. अब साउथ इंडिया में ये स्पेसिफिक काइंड ऑफ ड्रिंक, ट्रेडिशनल ड्रिंक आपको मिलेगा। एंड यस, हमारे इस तरफ भी मिलता है, टुवर्ड्स द नॉर्दर्न साइड, टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड इसको ताड़ी बोला जाता है। And when it goes to the South India, it's called toddy. So this is actually made up of palm. जो पाम ट्री होता है उसका जो सैप होता है उसको कलेक्ट करते हैं छोटे छोटे पॉट्स में, उसको कलेक्ट किया जाता है ऑन द ट्री इटसेल्फ, और उसको ओवरनाइट छोड़ दिया जाता है। सो इट विल जस्ट फर्मेंट आउट, एंड यू विल फाइंड उसमें जो फर्मेंटेड एक लिक्विड रहता है दैट हैज सम अमाउंट ऑफ अल्कोहल। तो वैसे ट्रेडिशनल बेवरेजेस ड्रिंक्स भी बनाए जाते हैं। Microbes are also used to ferment the fish, soybean, bamboo shoots to make different kinds of food. तो यहाँ पे फर्मेंटेशन प्रोसेस फिशेस को प्रिजर्व करने के लिए, सोयाबीन से सोया सॉस बनाने के लिए, बिसाइड्स दैट बैम्बू शूट्स, फर्मेंटेड बैम्बू शूट्स भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये हमारे ट्रेडिशनल फूड का एक पार्ट है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड ईस्टर्न इंडिया ये बहुत कॉमनली इस टाइप के फूड यूज़ करते हैं। आप घर पे जो सोया सॉस यूज़ करते हैं वो भी इसी प्रोसेस से बनता है। बैम्बू शूट्स, फर्मेंटेड बैम्बू शूट्स जिसको उड़िया में कर्डी बोला जाता है, वो भी यूज़ किया जाता है। And in northeast also the bamboo shoots are very commonly fermented to make different kinds of food. So microbes वहाँ पे भी use होते हैं for making different foods. Now this is your idli and dosa batter which is kept overnight for fermentation, which makes it fluffy. This is yeast, Saccharomyces cerevisiae, and this is how the bread is formed from the baker's yeast, Saccharomyces cerevisiae. And yes, different kinds of alcoholic beverages are also produced from the fermentation through microorganisms. Besides that, production of cheese is also a very important household food due to the microbes, right? Different varieties of cheese are known by their characteristic texture, flavor, and taste, and the specificity coming from the microbes used. तो बहुत सारे चीज़ होते हैं दुनिया में, different kinds of cheese you'll find, Swiss cheese, cottage cheese, Rupert's cheese, blue cheese. So these all cheese, they have a different kind of texture and different kind of flavor. दो ऑल ऑफ देम आर मेड फ्रॉम मिल्क, बट स्टिल हर किसी का एक अलग टेक्सचर और फ्लेवर होता है। दैट इज बेस्ड ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज फॉर मेकिंग दैट प्रोडक्ट। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज किया गया, उस पे उनका फ्लेवर और टेक्सचर डिपेंड करता है। सो दिस इज द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज दैट यू फाइंड, पार्मेसन, मोज़रेला, दीज आर वेरी कॉमन काइंड ऑफ वेस्टर्न चीज। और इंडिया में आप जो चीज खाते हो जिसको पनीर बोलते हो, दैट इज एक्चुअली कॉटेज चीज, इवन दैट इज a फॉर्म ऑफ चीज, राइट? Now, large holes in Swiss cheese are due to the production of large amount. The Swiss cheese is due to the production of large amount of CO2 by the bacterium named Propionibacterium sermani. Propionibacterium sermani ये स्विस चीज बनाने में यूज होता है। तो व्हाट इट डज कि वो बहुत हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जिसके चलते स्विस चीज का वो एक डिस्टिंक्ट होलो पैटर्न आता है। दिस इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोपियोनिबैक्टीरियम सरमनाई, और इसके ग्रोथ के चलते चीज कुछ इस टेक्सचर का बन जाएगा। देयर विल बी लार्ज होल्स इन द चीज बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक बैक्टीरिया। Now, similarly, Rupert's cheese is also one of the very costly cheese and very well-known cheese in the Western countries. It is caused and by the ripening of a certain fungal variety. एक फंगल वैरायटी होता है जो इसके ऊपर ग्रो करता है ड्यूरिंग इट्स मैचुरेशन फेज, ड्यूरिंग इट्स राइपनिंग फेज, एंड इट प्रोवाइड्स दैट डिस्टिंक्ट ब्लू कलर। इसका एक थोड़ा सा हल्का सा ग्रीनिश ब्लू कलर आता है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। दिस ग्रीनिश ब्लू शेड्स इन द चीज इज बिकॉज ऑफ फंगल वेराइटीज। इसको हम लोग बोलते हैं रूफर्ट चीज। So these are some of the uses of microbes in household food production. Now in the next class, we'll move on to the use of microbes in industrial products. Thank you. Thank you, everyone.